will be performing our first experiment, and the aim of the experiment is to find out the strength in grams per liter of the given solution of sodium hydroxide using a standard say n by 10 oxalic acid solution. Okay, so this is the aim, to find out the strength in grams per liter of the given solution of sodium hydroxide using the standard say n by 10 oxalic acid solution. Okay, so you are given with standard oxalic acid solution and you have to find out the strength of given sodium hydroxide solution, which is unknown. That is our aim. Okay, so basically, as you see, out of these two reagents, one, the sodium hydroxide is base and oxalic acid is acid. So this will be, we can say, we will find out the strength of sodium hydroxide using volumetry, and this will be and you can say acid-base type of reaction, which is called as neutralization reaction. And the principle of this experiment will involve the reaction between sodium hydroxide and oxalic acid, which will form sodium oxalate and water. So the base and acid will react to form salt and water. And Yes, thus sir. it is a neutralization reaction. Reaction. Okay, this is, you can say, sodium hydroxide, Yes, sir. oxalic acid, this is sodium oxalate, and this is water. So what will we do? We will take oxalic acid as it is titrant in the burette, and sodium hydroxide being titrate in the titration class. Okay, if we make a figure, this is burette, okay, and here in the burette we will take standard oxalic acid solution. Okay, we will take titrant. This is our n by 10 oxalic acid. Okay, n by 10 oxalic acid. And in the titration flask, we will take given or unknown solution of sodium hydroxide. Unknown or given NaOH solution means titrate. Okay,
So we will take 10 ml of sodium hydroxide in the fraction flask. Then add 1 to 2 drops of indicator phenolphthalein in it. And as you add indicator into this solution of sodium hydroxide, it will immediately turn to pink. Okay? Right? So, add 2 drops, 1 to 2 drops of indicator phenolphthalein. Okay? It will turn pink. Already it will be colorless. When you will add 1 to 2 drops of indicator phenolphthalein, it will turn dark pink. You can see. Dark pink. Okay? And then we will titrate this solution of NaOH versus oxalic acid. Means हम इसमें ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑक्सैलिक एसिड ऐड करेंगे. ठीक है? एंड व्हेन द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सैलिक एसिड एंड sodium hydroxide is complete, that is when the complete neutralization of sodium hydroxide takes place with the oxalic acid. ठीक है? Means when the end point of the reaction will come, ठीक है? The pink color of the solution will discharge. It will disappear. Right? How you will come to know? कैसे पता लगेगा हमें एंड पॉइंट आ गया रिएक्शन का? रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. जो इसका पिंक कलर है वो क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. मतलब एंड पॉइंट आ गया है. मतलब एंड पॉइंट आएगा क्या मतलब है? जो इसमें बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दैट हैज गॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड. क्योंकि रिएक्शन क्या है हमारा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. कैसा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन. इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके? तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम? स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? हम ब्यूरेट में अपना इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे. यहां पे ऑक्सैलिक एसिड कहां तक है? देन वी विल रन ऑक्सैलिक एसिड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड पॉइंट आ जाएगा. ठीक है? मान लीजिए यहां तक इसमें यूज हुआ आपका सोडियम ऑक्सैलिक एसिड. ओके? तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे. इसको बोलेंगे फाइनल रीडिंग. इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग. फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज. कितना ऑक्सैलिक एसिड यूज हुआ है वो आ जाएगा. ठीक है? उसके लिए अब हम क्या करेंगे? यहां पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, या हम कह सकते हैं यहां लिखेंगे हम ऑब्जर्वेशन. ठीक है? सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या मिला हुआ है. ठीक है? लेट्स सपोज हम कहते हैं हमें ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ या नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है? गिवन है, इसे दे रखी है आपको. कितनी है? हम बोलते हैं लेट्स सपोज दिस इज n1. कितनी दे रखी है आपको? 1/10 या n/10 है. 1/10. ठीक है? देन दूसरा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज्ड. यहां पे कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है? ठीक है? 10. लेट्स सपोज हम इसे बोलते हैं V1. ये कहां से आएगा? इट विल कम फ्रॉम
ऑब्जर्वेशन टेबल टेबल बनाएंगे, वहां से आएगा, ब्यूरो रीडिंग से ही आएगा। ठीक है, ऐसे निकले फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टेबल, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टेबल। टेबल यहां से आएगा हमारे पास। ठीक है, देन नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम में क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड taken in titration flask, इसको लेट्स सपोज हम बोलते हैं V1, सॉरी V2, दिस इज 10 ml, हमने 10 ml लिया इसे। ठीक है, नॉर्मलिटी ये हमें निकालना है, नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, C is N2, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल। टेबल, ये ऑब्जर्वेशन टेबल किसके लिए बनेगा, ये ऑब्जर्वेशन टेबल जो ब्यूरेट रीडिंग्स है, कितना ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल हुआ है हमारा, ठीक है, उसके लिए बनेगा। राइट, तो इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 like this. Then we will take here volume of NaOH, volume of NaOH volume of NaOH taken in titration flask here. ये मान लीजिए हम 3 रीडिंग लेंगे इसकी कंकॉर्डेंट रीडिंग, तो हर बार हर रीडिंग के लिए हमें 10 ml बहुत दर्द हो रहा है यार। दिस विल बी 10 ml और ठीक है, देन हियर वी विल बता दो। initial reading, initial burette reading, okay, then final reading, final यानी final reading is final burette reading, और यहाँ क्या आएगा, volume of oxalic acid use, ये आप कैसे निकालेंगे, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग से आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें आप, मैंने आपको जैसे यहां बताया, एक रीडिंग आपने ली, ठीक है, तो उसी तरह की आपको कुल मिलाकर के 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग लेनी है। कितनी लेनी है, 3। कंकॉर्डेंट का मतलब होता है एक जैसी, कंकॉर्डेंट का मतलब क्या है, एक जैसी। इसमें देखिए हम 3 रीडिंग लेंगे तो तीनों में सॉल्यूशन तो सेम ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सेम ऑक्सैलिक एसिड सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी कि हम सेम एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट कर रहे हैं। तो रीडिंग कैसी आनी चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड जो आएगा कैसा आना चाहिए, वॉल्यूम हर बार सेम, क्या आना चाहिए, सेम। तो ऐसी रीडिंग जब सेम मतलब एकदम बिल्कुल एक जैसी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंकॉर्डेंट रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकॉर्डेंट, CORDANT, कंकॉर्डेंट रीडिंग बोलते हैं उसको। समझ आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास ये आएगा V2 आएगा, ये V2,
3 रीडिंग V2 एक जैसी आनी चाहिए, V2 आएगा यहां से हमारे पास। ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए हम नॉर्मलिटी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मलिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मलिटी इक्वेशन ये क्या होती है, N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट टू बोलते हैं हम, राइट। इक्वल टू नहीं है, क्या है, इक्विवेलेंट टू, राइट। अब लेट्स सपोज दिस as we know this N1 and V1 is for oxalic acid and N2 V2 is for sodium hydroxide। ठीक है, सो N1 आपको दिया है, कितना दिया, 1/10। ठीक है, एंड सॉरी इट शुड बी V1 नॉट V2, इट शुड बी V1। ऑब्जर्वेशन टेबल में V1 लगेगा, ये तो V2 तो हमें, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, स्टेटमेंट नाइट्रोजन फ्लास्क। यस सर। ये 10 ml है, सो इट इज V1। ठीक है, तो V1 ये कहां से आएगा हमारा V1, ऑब्जर्वेशन टेबल से, एक्सपेरिमेंट से आएगा। ठीक है, N2 ये आपको निकालना है, एंड V2 ये कितना लिया आपने, 10 ml लिया हर बार। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका N2 आ जाएगा। N2 क्या आ जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू 10 V1 बाय कितना हो जाएगा, V1 बाय 100, ये निकलेगा ना, 10 किधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, V1 बाय 100। ये आपका नॉर्मलिटी आ गया N2। N2 किसका है नॉर्मलिटी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या निकालने को बोला है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। क्या बोला है, स्ट्रेंथ बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड का। स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है स्ट्रेंथ का नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्योंकि यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालते तो नॉर्मलिटी भी किसकी होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की जो हमने निकाली, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका निकाल रहे हैं उसी के होंगे। तो इसको क्या करें हम, इसमें रख दीजिए हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 40 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें रख दो, तो क्या आएगा, स्ट्रेंथ यहां निकाल लेंगे। स्ट्रेंथ क्या आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये आ जाएगी आपकी नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है, V1 बाय 100 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 40। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ आ गई। किसमें आएगी, अब ग्राम पर लीटर में आएगी। किसमें आएगी, ग्राम पर लीटर में आएगी। नॉर्मलिटी जो होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है। क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये जो नॉर्मलिटी किसमें होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन स्ट्रेंथ आएगा जब आप इसको नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्ट्रेंथ किसमें आएगा, ग्राम पर लीटर में आएगी। किसमें आएगी, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसका वजन लिख देंगे। वजन क्या बनेगा, यही है आपका स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन NaOH सॉल्यूशन इज कितनी है, यही है ना, V1 इंटू 40 बाय 100 ग्राम पर लीटर।
ठीक है, रिजल्ट ठीक है। सो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। राइट, ठीक है।